अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे जीएचएमसी की जानिब से घर घर कोविड टीका अंदाजी मुहिम जारी। 70% आबादी ने वैक्सीन ले लिया, माबकी 30% के लिए खुसूसी मुहिम जारी। दलित बंधु स्कीम की अमलावरी से रियासत भर के दलित तबके में नया जोश। कारगुजार सदर टीआरएस केटीआर ने पार्टी इजलास से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। तालीमी इदारों की कुशादगी के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर्स के साथ मुनक़िद किया इजलास। सरखे की वारदातों से बरामद करदा अशिया की शिकायत कुनिंदों में तकसीम के सिलसिले में मेले का इनेकाद। 1 करोड़ 10 लाख रुपये मालियती अशिया हवाले की गई। कमिश्नर साइबराबाद का बयान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में पार्टी के आमिला का इजलास तेलंगाना भवन में मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसिल ने शिरकत की। इस इजलास में हुज़ूराबाद में शुरू की गई दलित बंधु स्कीम का तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के अलावा दही सतह से शहरी सतह तक पार्टी कायदीन पर मुबनी कमेटियों की तश्कील और हुकूमत के शुरू करदा स्कीमात आवाम तक पहुँच रही हैं या नहीं, इस पर सदर टीआरएस और वज़ीर आला ने पार्टी कायदीन के साथ तफसीली तौर पर मुज़ाकरात किए। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि दलित बंधु स्कीम को लेकर दलितों में नया जोश देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी के 2 घंटे से ज़ायद चले इस इजलास में हुज़ूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब को लेकर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, क्योंकि उन्हें आवाम पर मुकम्मल एतमाद है कि हुज़ूराबाद की आवाम टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार करेगी। जिस तरह हर इंतखाबात में हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए आवाम ने टीआरएस को कामयाबी दी है। పనిచేయాలని ఎక్కడి వారు అక్కడ పాలు పంచుకోవాలని ఎక్కడి వారు అక్కడ అందులో ప్రజలను మమేకం చేయాలని చెప్పి కూడా వారు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। సో ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చాలా సావధానంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే వివరించినారో వాటన్నిటిని కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గం ఈరోజు చాలాసేపు అన్ని విషయాలు చర్చించుకున్నాం। బహుశా రేపో ఎల్లుండో మళ్ళీ ఒకసారి కేశవరావు గారి నేతృత్వంలో ఈ తేదీల గురించి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఏ కార్యక్రమం చేయాలనేది కూడా కూర్చొని ఆ కూర్పు దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అనుకుంటాం। ఆ రకంగా మరి కార్యవర్గం సమావేశం చాలా ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణంలో, చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మనసు విప్పి చాలా విషయాలు కూడా చెప్పినారు। వారికి మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు, పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, నమస్కారం। బ్రదర్, ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ పుట్టిన తర్వాత, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మేము ఒకటి కాదు 10ల సంఖ్యలో ఎన్నో ఎన్నికలు ఎదుర్కొన్నాం। అందులో ఒకటి హుజూరాబాద్। కాబట్టి దానికి ఏదో పెద్దప్ప మాకేం పని లేనట్టు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం మొత్తం దాని మీద 2 గంటలు చర్చించినట్టు ఎవరన్నా పత్రికల వాళ్ళు కానీ మీడియా వాళ్ళు కానీ అనుకున్నా రాసినా అది మీ భ్రమ, వెరితనం। ఎందుకంటే హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక ప్రస్తావన కూడా ఈ సమావేశంలో రాదు। ఉప ఎన్నిక అనేది చర్చ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఉప ఎన్నిక తేదీ వస్తే, నోటిఫికేషన్ వస్తే వస్తుంది। ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక ఖచ్చితంగా ఒక రాజకీయ పార్టీగా మళ్ళీ కూర్చుంటాం, మాట్లాడుకుంటాం, ఏ రకమైన వ్యూహం అవలంబించాలి, ఏం చేయాలి అన్నీ కూడా అందులో మాట్లాడుకుంటాం। ఈరోజు 2.5 గంటలు, దాదాపు 2.5 గంటలు అయినట్టుంది సమావేశం। హుజూరాబాద్ అనే పేరు కూడా ఈ సమావేశంలో రాలేదు, ఆ ఉప ఎన్నిక ప్రస్తావన కూడా రాలేదు। మాకు చాలా చిన్న విషయం, పెద్ద విషయం కింద మీరు అనుకోవచ్చు, ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు వాళ్ళ మనసు అంతా దాని చుట్టే పరిభ్రమిస్తుండొచ్చు, కానీ మేము ఎదుర్కొన్న ఎన్నో ఉప ఎన్నికల్లో అదొక చిన్న ఎన్నిక, అది పెద్ద లెక్క కాదు మాకు। డెఫినెట్గా ప్రజల ఆశీర్వాదం మాకే ఉంటుంది। పనిచేసే ప్రభుత్వానికి, పనిచేసే పార్టీకి, పనిచేసే నాయకుడికి ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఎట్లా ఆశీర్వదిస్తారో వరుసగా ఎన్నికలు చూస్తూ ఉన్నాం। మా గెలుపు కూడా
దానికి తార్కాణం అని చెప్పి కూడా చెప్పొచ్చు. सदरनशीन पब्लिक अकाउंट लेजिस्लेटिव कमेटी अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में असम्बली के कमेटी हॉल में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अक़लियतों SC-BC के वेलफेयर बजट से मुताल्लिक़ मुबाहिस करते हुए अक़लियतों के मख़्तस करदा बजट और ख़र्च का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओहदेदारों को शादी मुबारक स्कीम, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, बैंक लिंक के तहत दिए जाने वाले खर्चात की दरख्वास्तों की फौरी तौर पर यकसोई करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, TRS रुकन असम्बली के किशोर, मजलिसी रुकन खानसास कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। महकमे GHMC की जानिब से घर घर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन देने की मुहिम के दूसरे रोज़ भी शहर के कई इलाक़ात में आवाम ने कतार में खड़े होकर कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। महकमे सेहत और GHMC ज़राए के मुताबिक GHMC की कोरोना वैक्सीन की मुहिम के पहले रोज़ सबसे ज़्यादा टोली चौकी और कोकटपल्ली की आवाम ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। ग्रेटर हैदराबाद में अब तक 70% से ज़ायद अफराद ने कोरोना की पहली खुराक ले ली है। माबाकी 30% के लिए GHMC दूसरी मुहिम चला रही है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए इस बात की हिदायत दी कि 1 सितंबर से KG ता PG तक स्कूल्स कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी करने के तमाम तर इंतजाम पाए तकमील कर लिए जाएँ और 30 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे को सैनिटाइजेशन करने के इक़दाम भी किए जाएँ। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज़ 1 सितंबर से खानगी और सरकारी स्कूल्स के अलावा कॉलेजेस को दोबारा शुरू करने की हिदायत दी है। मुख्तलिफ तलबा तंजीमें, PDSU और PYL के कारकुनों ने जॉब कैलेंडर जारी करने और असातिज़ा की मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा करते हुए CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन के पास ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तलबा कायद प्रदीप ने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मुलाजिमतों के तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी नहीं किया गया तो CM कैंप ऑफिस के पास इज्तिमाई खुदकुशी का इक़दाम किया जाएगा। మళ్ళీ ఐపీఎస్ కేసులు చేస్తే కోర్టు తిరగాల్సి వస్తుంది. ప్రైవేట్ వరకు మళ్ళీ ఉన్న ఉద్యోగాలు రావు వీళ్ళకి వాళ్ళు ఇళ్ళ కేసులు అయితే అందుకని వచ్చేదండి. सदर तेलंगाना YSR पार्टी YS शर्मिला ने तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को लेकर और जिन नौजवानों ने मुलाजिमत ना मिलने की वजह से खुदकुशी की है उनको खराज पेश करने के लिए हर मंगल को एक रोज़ा दीक्षा का इनेकाद अमल में ला रही हैं। इस सिलसिले में YS शर्मिला ने आदिलाबाद ज़िले मंचिलियाल में एक रोज़ा दीक्षा मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सरकारी महकमे जात के तमाम मखलूआत जायदादों के लिए एलामिया जारी करे।
कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने एक सीडी जारी करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों को फिर एक मर्तबा धोखा दे रहे हैं और इसीलिए बीसी कमीशन में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को नुमाइंदगी नहीं दी गई, जबकि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मुसलमानों को BCE के ज़ुमरे में लाते हुए मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के इक़दाम किए गए, लेकिन वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने और वक्फ़ बोर्ड को जुडिशनल इख्तियारात देने का वादा करते हुए धोखा दिया है। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत प्रोग्राम में मुल्क की 130 करोड़ आवाम को हिस्सा लेना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें मुख्तलिफ जमातों के क़ायदीन शामिल है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि आज़ादी का अमृत सरकारी फेस्टिवल नहीं होना चाहिए बल्कि ये आवाम का फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि तहरीक आज़ादी से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल मैं तैयार हूं, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट किए तो मैं जो भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का लेने का है तो रूल्स क्या है नहीं मालूम, मैं रूल्स स्टडी करना है। मेरा व्यक्तिगत इच्छा है जरूर आर्कियोलॉजी में लाना चाहिए इसको। पैसे मिलता, कुछ एडिशनल अमाउंट मिलता है, कुछ नाम्स अलग रहता है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रहते हैं। इसी दृष्टि में हैदराबाद में जितने भी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स है जो इम्पोर्टेंट है, सबको ASME लाए तो बहुत अच्छा है। तेलंगाना को अन्याय हुआ है, कौन रोका, क्यों आर्कियोलॉजिकल नहीं दिया है, वो भी स्टडी करने का विषय। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, प्रेस रिपोर्टर से थोड़ा स्टडी करिए, क्यों आर्कियोलॉजिकल के सर्वे के अंदर 8 मॉन्यूमेंट्स है तेलंगाना में। रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला KCR की तरफ से तलब किए गए इजलास और ऐलान के बाद आज हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिया है। हुकूमत के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की तरफ से जारी किए गए GO में कहा गया है कि हुकूमत ने शोबे सेहत के साथ नज़दीकी से जायज़ा लेते हुए तमाम सरकारी और खानगी के अलावा दीगर तालीमी इदारों को फ़िज़िकल मोड में खोलने का फ़ैसला किया है। तमाम अज़ला के शोबे तालीम के अहदेदारों को इस सिलसिले में कोविड क़वायद की पाबंदी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने इतवार को टैंक बॉन्ड पर ट्रैफिक तहदीदात लगाने की पुलिस को तजवीज़ पेश की है। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव को एक शहरी की तरफ से तवज्जो दिलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक इतवार के दिन ट्रैफिक तहदीदात टैंक बॉन्ड पर लगाई जाए ताकि वहां आने वाले अफराद को सड़क अबूर करने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। ट्विटर पर अशोक चंद्रशेखर नामी शख्स ने कहा कि कई लोग इतवार को टैंक बॉन्ड आते हैं लेकिन ट्रैफिक की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं पाते, इसलिए वहां पर ट्रैफिक तहदीदात होनी चाहिए। KTR ने पुलिस को इस सिलसिले में इक़दाम की हिदायत दी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया भी मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में सरगर्म है। इस सिलसिले के तहत रियासत नगर के डिवीजन कॉरपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग ने मोइन बाग में जारी सीवरेज लाइन के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन के इलाके जात शंकर नगर ता धोबी गली और अतराफ अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और मसाइल का जायज़ा लिया। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर के हमरा GHMC अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
साइबराबाद कमिश्नरेट की जानिब से दूसरा मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें सरखाशुदा अशिया को हकीकी मालकीन के हवाले किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनारा IPS ने बताया कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपये मालियती अशिया शिकायत कुनिंदों के हवाले की गई। उन्होंने बताया कि तिलाई नखरवी जेवर के अलावा वहीकल्स, नवरकम और दीगर अशिया भी हवाले की गई। इस मौके पर शिकायत कुनिंदों ने साइबराबाद पुलिस और कमिश्नर वीसी सजनारा IPS से हदिया तशक्कुर अदा किया। ऑलमोस्ट 60% रिकवरी कर रहे। हम लोग भी, हमारा तेलंगाना पुलिस और साइबराबाद पुलिस तरफ से भी हम लोग एवरी टाइम हम लोग एडवाइजरी दे रहे, बट अभी भी पब्लिक की तरफ से बहुत सारे नेग्लिजेंस है। वो घर पे उनका गोल्ड सिल्वर आइटम्स और पैसा भी ऐसी लूजली कैजुअली रख के घर छोटा सा की डाल के वापस जा रहे। इसके वजह से भी जो थेफ्ट करने वाला है उनको एक मौका मिल रहा है। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बैंक का फैसिलिटी, लॉकर का फैसिलिटी यूज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप बाहर जा रहे तो किसी को मत बताइए कि आप जा रहे करके। आप जाना है तो अर्जेंट अच्छा सा सेंट्रल लॉक सिस्टम, नहीं तो एक अच्छा सा की लगा के जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी हम तेलंगाना पुलिस के लिए लोगों बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं CCTV इम्प्लीमेंटेशन में। अब तक ऑलमोस्ट 7 लाख CCTVs हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गए। अभी भी मौका है। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपके पास मौका है, जहाँ जहाँ आपका घर है, शॉप्स है, एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे CCTV लगाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। CCTV लगाने से बहुत सारा फ़ायदा है। बहुत सारे केसेस हमारे पास 24 घंटे से अंदर ही डिटेक्ट हो रहे। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे साथ ज्वाइन हो के CCTV इंस्टॉल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साइबराबाद में 2nd प्रॉपर्टी रिलीज़ मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 150 केसेस में 2 करोड़ का प्रॉपर्टी हम लोग जो खो गए थे, जो उनके घर में थेफ्ट हुआ था, व्हीकल्स, लैपटॉप, सेलफोन्स वापस दिए गए थे। उस कंटिन्यूएशन सिकंदराबाद लालागुड़े की आवाम को सड़क के तामीरी कामों की अदम तकमील से गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि 4 माह कबल सड़क के तामीरी काम के लिए खुदवाई की गई थी, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। इस खुदवाई के बाद कई पानी की और ड्रेनेज लाइनों को नुकसान पहुंचा और ड्रेनेज का पानी भी बहने लगा है, जिससे हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बार बार मुतालिका कॉरपोरेटर और मुतालिका रुकन असम्बली को भी तवज्जो दिलवाई गई, लेकिन अभी तक इस मसले की यकसुई नहीं हुई। शुमाली लालागुड़ा की आवाम ने कहा है कि CC रोड के नाम पर खुदवाई की गई थी, ताहम बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी उनकी फरियाद को कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने अरबाब मजाज से अपील की है कि फौरी इस जानिब तवज्जो दी जाए। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सालारजंग ब्रिज दारुशफा में हुए सड़क हादसे में 55 साला शख्स फौत हो गया। गंगा पुत्र संगम के सदर चंद्र प्रकाश ने बताया कि मल्लेश BJP और RSS वर्कर था और इस सिलसिले में अफजलगंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। सालारजंग ब्रिज पर कचरे की वजह से इस सड़क से गुजरने वालों को तकालीफ का सामना है, क्योंकि पास ही बनाए गए डंपिंग यार्ड से गुजरते हुए गाड़ियां कचरा सड़क पर गिरा देती हैं। बारिश से लोगों को तकलीफ हो रहा, आना जाने में तकलीफ के अलावा जाने जा रही है। ये सरकारी तौर पे जो गवाह है, सरकारी तौर पे रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। जो भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो लोग आपस में गाड़ियां भी पलटी हो गए, वो लोग भी मर गए। अभी तक सरकार ने बोला उनको, उन गरीबों को, उन सफाई कर्मचारियों को जो भी साफ करते उनको पैसा देने का, मुआवजा देने का भी ऐलान करा था, पर आज तक कोई पैसा उनको नहीं मिला है। और कल भी आनंदेशी मल्लेश बोल के बेचारा गरीब आदमी अपनी काम से लौटते वक्त वहाँ पे डंप यार्ड के बाद बारिश से गिर के वहीं पे हेलमेट लगाने के बाद, हेलमेट क्रैक होने के बाद भी गिरने के बाद 15 मिनट तक होश में था, उसके बाद मर गया। मैं कहता हूँ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सरकार किस लिए है? ये सरकार जो भी काम करती है पब्लिक के लिए करती है। पब्लिक खुद मर रही है यहाँ पे, सब चीज़ को मालूम है। क्यों ये डंप यार्ड वाले कोई काम कदम नहीं उठाते? डंप यार्ड की सरासर गलत है। डंप यार्ड अपने पैसा बटोरने में है, लोगों की जानों की कोई परवाह नहीं है।
पेटला बुरुज में वाक़ मैटरनिटी हॉस्पिटल में पेश आए एक वाक़े में हामिला खातून की डिलीवरी के दौरान मौत वाक़ हुई। इस वाक़े के बाद मुतवफ़िया सरिता के शौहर ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और इस सिलसिले में चारमीनार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। क्या है बोले तो प्रेगनेंसी में थोड़ा बीपी हाई हो गया था, 6 महीने प्रेगनेंसी। उसके बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग में हुआ, हम लोग सडनली क्या है कि इमरजेंसी केस में लेके आए, एडमिट करे। 11 तारीख से एडमिट करने के बाद में सब अच्छा है, 3-4 दिन में बीपी 160-150 है। पेशेंट चल रहा फिर रहा, मेरे से आराम से बात कर रहा था। हम लोग स्टार्टिंग से नॉर्मल नक्को बोल के बोल रहे, तो नॉर्मल ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाके चेकअप कराए तो बड़े डॉक्टर साहब भी बोले कि नहीं नॉर्मल नहीं होता है, तुम्हारे को ऑपरेशन ही रहता। ठीक है बोले, हर जगह हम गए तो ऑपरेशन ही बोले, हर जगह नहीं बोल के हमारे को 10-12 दिन से नॉर्मल बोल के रोक के रखे। कल भी 5 बार मेरे से साइना लिए, 5 बार रिकॉर्डिंग करे। अब कल ऐसा हुआ बोल के रिकॉर्डिंग बताओ बोले तो अलग अलग कट करके रिकॉर्डिंग बता रहे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मोनिका नामी लड़की की मुबैना खुदकुशी का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक 27 साला मुतवफ़िया एमटेक की तालिबा बताई गई हैं। बताया गया है कि राखी त्यौहार के दिन मोनिका अपनी सहेलियों के साथ देखी गई थी और जब दूसरे दिन वो क्लास के लिए नहीं आई तो साथियों ने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन भी उसने रिसीव नहीं किया और जब उसके हॉस्टल रूम में जाकर देखा गया तो वहाँ उसकी लाश लटकी हुई पाई गई। दूसरी जानिब मोनिका के वालिद ने कहा कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुतवफ़िया ने खुदकुशी नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने अपने वालिदैन से माफ़ी भी चाही है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्ची मोनिका है इनके नाम, 26 साल की बच्ची है। ये एमटेक सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं बच्ची हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये रहने वाला है पेद्दपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट वाले। तो यहाँ से 2 साल से इनके फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे हॉस्टल में रहते हुए एमटेक नैनो साइंस कोर्स पढ़ रहे हैं। ये बच्ची जो है मई महीने 11 मई को गांव चले जाके वहाँ से ऑनलाइन कोर्स अटेंड करते हुए परसों 13 तारीख को फिर वापस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके लैब कोर्स करने के लिए आ गए। लैब अटेंड होते हुए 13 से 18 तारीख तक क्वारंटाइन में रह के 19 तारीख से लेके जहाँ पहले से रूम में रहता था वो रूम में फिर ज्वाइन हुए। रूम में अकेले रहते थी। जो रूममेट था वो कोविड वजह से उन्होंने गांव पे रह रहे, इसी वजह से उन्हें अकेले रूम में रह रहे। 19 तारीख से लेके 21-22 तारीख को ये राखी पौर्णमी फेस्टिवल था। इसकी वजह से उनका दोस्तों के साथ मिलके फिर शाम में वापस रूम पे चले गए। फिर नाइट टाइम में इनके क्लोज़ फ्रेंड जो है वो सुप्रिया बोल के एक बच्ची है और एक गौरी बोल के है। सुप्रिया को नाइट टाइम में कुछ चैटिंग करके उनको मैसेज डाला, गुड नाइट मैसेज डाल के फिर सोने के लिए चले गए। फिर बाद में कोई किसी से कांटेक्ट पे नहीं आया, रूम से बाहर भी नहीं निकला। कल सुबह उन्होंने लैब कोर्स को जाने वाला था, फिर अटेंड नहीं हुई। 2 फ्रेंड्स हैं सुप्रिया गौरी और सब लोग इनको बार बार फ़ोन करते हुए शाम में उनके क्लास होने के बाद फिर इनके रूम पे आके चेक किए तो डोर बंद था, वो नहीं खोल रहा था। तो सिक्योरिटी लोगों को बुला के डोर ब्रेक करके अंदर जाने के बाद लोग देखे तो वो फांसी करके डेथ हुआ उनका। तो इनके इमीडिएटली वो लोग पुलिस स्टेशन गच्चीबोली की इन्फॉर्मेशन दिया, घर वालों को बोला, यूनिवर्सिटी वालों को बोलने के बाद हम भी वहाँ पे जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई किए। तो इसमें इनके डेथ के रीज़न अभी तक
पता नहीं चला है। इनका फैमिली वाले बोल रहे कि फैमिली में कुछ इश्यूज़ नहीं है बोल के, फ्रेंड्स बोल रहे कि यूनिवर्सिटी में भी कुछ इश्यूज़ इनके नहीं है बोल के बोल रहे। फिर भी वहाँ पे जो सीन ऑफ ऑफेंस में हम कुछ उनका टेक्निकल गैजेट्स पूरा सीज़ किया है और उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव सीज़ किया गया है और वो सब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीजनल कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स तरक्याती कामों की तकमील को लेकर संजीदा हैं और मुख्तलिफ मरहलों पर अपनी नुमाइंदगियों को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने जोनल कमिश्नर GHMC P परवनिया IAS से मुलाकात की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन के तौर पर प्रोफेसर R लिम्बाद्री को नामजद किया गया है, जिन्होंने काउंसिल के दफ्तर में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। साबिक चेयरमैन पापी रेड्डी ने उन्हें चार्ज हवाले किया। प्रोफेसर R लिम्बाद्री ने उन्हें काउंसिल का चेयरमैन बनाए जाने पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर भी किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महकमे GHMC की जानिब से घर घर कोविड टीका अंदाजी मुहिम जारी। 70% आबादी ने वैक्सीन ले लिया। माबकी 30% के लिए खुसूसी मुहिम जारी। दलित बंधु स्कीम की अमलावरी से रियासत भर के दलित तबके में नया जोश। कारगुजार सदर TRS KTR ने पार्टी इजलास से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। तालीमी इदारों की कुशादगी के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर्स के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। सरखे की वारदातों से बरामद करदा अशिया की शिकायत कुनिंदों में तकसीम के सिलसिले में मेले का इनेकाद। 1 करोड़ 10 लाख रुपये मालियती अशिया हवाले की गई। कमिश्नर साइबराबाद का बयान। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।